Hello students, welcome to Excelsior. Today we are back with another video on Coulomb's law in vector form and forces between multiple charges in vector form. See, I have already made a separate video on how Coulomb derived this expression, that is F equals K into Q1 Q2 divided by R square. So you should watch that video first and then come back to this video so that you will learn things very easily. Alright. So let's start with the topic. Consider this figure, okay? Figure 1.3. There are two charges Q1 and Q2. They are placed in vacuum and they are placed at R1 position vector and R2 position vector respectively. So charge Q1 is at R1 position vector and charge Q2 is at R2 position vector from origin. All right. So if you remember vector law addition, triangle law of vector addition, you know that if there is vector A and then there is vector B, then the resultant vector C is given as vector A plus vector B equals vector C. Okay. So this is figure 2. Okay. Now this is figure 1. Now consider these two figures. All right. Consider these two figures, and if you compare them, then you can put R1 position vector in place of A, R2 1 position vector in place of B, and R2 position vector in place of C. All right. This becomes vector A, this becomes vector B, and this becomes vector C. Okay. So what you will find? You will find that R2 1 position vector is R2 minus R1. And how you will read this R2 1 vector? How you will read this? You will read this as vector leading from 1 to 2. और हम इन्हें इसे ऐसा क्यों पढ़ेंगे? We will learn in few minutes. All right. So if these are two like charges, Q1 and Q2 are two like charges, then they will experience repulsive force. Okay, they will feel repulsive force, मतलब वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे. तो Q1 पे चार्ज 2 की वजह से एक फोर्स लग रहा है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है. ऑलराइट, जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और Q2 पे एक फोर्स लग रहा है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है. और जो Q1 पे फोर्स लग रहा है उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? F12 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q1 by Q2 and F21 force on charge Q2 by Q1. All right. Then do not confuse F12 and R12 सबस्क्रिप्ट्स. अब यहाँ पे F12 यहाँ पे सबस्क्रिप्ट क्या है? सबस्क्रिप्ट यहाँ पे जैसे ये एक्सप्रेशन हो गया, ये लेटर F हो गया, तो यहाँ पे हमने 1-2 लिख दिया. तो ये जो 1-2 है ये क्या है? सबस्क्रिप्ट है. ये क्या है? सबस्क्रिप्ट है. दिस इज वेरी सिंपल. ऑल राइट, आई डोंट नीड टू टेल, बट एनीवे. सो F12 मीन्स फोर्स ऑन 1/2. इतना तो हमने पहले ही बता दिया है. बट R12 मीन्स वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1. ऐसा क्यों हो रहा है? पहले हम फोर्स F12 देख लेते हैं. F12 पे फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में है. तो इस डायरेक्शन में अगर फोर्स आ रहा है तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर होगा वो 2 से 1 की तरफ आ रहा होगा. राइट, वो 2 से 1 की तरफ आ रहा होगा, ये जो लग रहा है हमारे पास. तो इसीलिए F12 के केस में जो हम पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं वो R12 लिख रहे हैं, और R12 का मतलब क्या हुआ? वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1. और F12 को कैसे पढ़ रहे हैं? F12 को कैसे पढ़ रहे हैं? फोर्स ऑन 1/2. तो ये बहुत ही सिंपल है. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, और ऐसा मिस्टेक मत कर देना. सबस्क्रिप्ट में मिस्टेक नहीं करना है एग्जाम में. ऑलराइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law. ऑलराइट, सो इफ R21 is R2 minus R1 vector, then R12 will become R1 minus R2 vector is equal to minus R21 vector. Alright, and you also know unit vector. Unit vector क्या है? Suppose if there is any vector capital vector A, then its unit vector will be given as vector A divided by magnitude of vector A. Alright, so इसी हिसाब से R2 पोजीशन वेक्टर के लिए हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा? R21 कैप. ओके, यूनिट वेक्टर को हम उसके ऊपर कैप से डिनोट करते हैं. ऑलराइट, सो R21 यूनिट वेक्टर will become R21 position vector divided by magnitude of R21, and R12 unit vector will become R12 position vector divided by magnitude of R12. All right, now in this charge configuration we have taken like charges. All right, like charges. So like charges means both are positive charges, so Q1 into Q2 is greater than 0. okay, both are positive. Now अगर हम सिंपली इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे ये Q1 चार्ज है, यहाँ पे ये Q2 चार्ज है. तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है. एक इधर फोर्स आ रहा है और एक इधर फोर्स आ रहा है. जो Q1 चार्ज पे फोर्स लग रहा है उसको हम F12 बोल रहे हैं. और ये जो डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर हो उसको हम एक तरीके से उस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन की तरह डिनोट करते हैं. राइट, तो ये जो डायरेक्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं? R12. और ये R12 क्या है? R12 इज यूनिट वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1.
2 to 1, इसको कैसे पढ़ेंगे, लीडिंग फ्रॉम 2 to 1, और F12 को कैसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 1 by 2. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली, इसमें आप कोई और मिस्टेक बाद में नहीं करना, ऑलराइट। और फिर उसके बाद ये चार्ज Q2 है और इस पर एक फोर्स लग रहा है F21, फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ चार्ज 1। और यहाँ पे जो ये वाला वेक्टर, जो ये वाला वेक्टर नोट है, जो ये वाला वेक्टर डायरेक्शन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, R21 यूनिट वेक्टर, और इसको कैसे लिख सकते हैं, R21 पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर, R21 वेक्टर, ऑलराइट, सॉरी। नाउ इफ R21 यूनिट वेक्टर इज रिवर्स्ड, इफ R21 यूनिट वेक्टर इज रिवर्स्ड, तो इधर डायरेक्शन था वो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, राइट, वही मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। सो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ -R21, ये वाला डायरेक्शन किससे मिलता जुलता है, ये वाला डायरेक्शन आपका R12 से मिलता जुलता है, R12 से मिलता जुलता है, इसीलिए R12 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 कैप, ऑलराइट, इसीलिए R12 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 कैप। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने इसको बता समझाने की कोशिश की है, ऑलराइट। सो ये आपका कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का ये जो है बेसिक्स है, उसको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। और फिर उसके बाद हम कूलॉम्स लॉ को लिखेंगे कैसे, रीड दिस इक्वेशन, ऑलराइट, रीड दिस इक्वेशन। सो Coulomb's force law between 2 point charges Q1 and Q2 located at R1 and R2 respectively is then expressed as F21 vector. This is vector. I have already told you कि NCERT में अगर वेक्टर शो कर रहा है तो वो उस लेटर को बोल्ड कर दे रहे हैं, ओके, वो उस लेटर को बोल्ड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे F21 को देखो, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर, ओके। अगर मुझे इसको और सिंपल तरीके से लिखना होगा तो F21 means force on charge 2 because of charge 1 equals 1/4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 divided by R21 square, R21 square into यूनिट वेक्टर R21 कैप, ऑलराइट, यूनिट वेक्टर R21 मतलब 2 पे 1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, और ये वाला क्या है, लीडिंग फ्रॉम 1 to 2, लीडिंग फ्रॉम 1 to 2। और उसी तरीके से F12 को कैसे लिखेंगे, F12 को लिखेंगे F12 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर, ओके। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में जो ये मैंने लिखा है, ये पोजीशन वेक्टर R12 का मैग्नीट्यूड है, इस पोजीशन वेक्टर का R12 का मैग्नीट्यूड है, और ये पोजीशन वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड है, ऑलराइट। सो ये सारे जो रिमार्क्स हैं, ये सारे रिमार्क्स मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में मैंने बता दिया है। यहाँ पे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस को समझने के लिए थोड़ा सा एक बेसिक्स तैयार करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को रिपीट किया है, ऑलराइट, इसीलिए कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को मैंने यहाँ पे रिपीट किया है, जिससे कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस को समझने में आसानी हो, ऑलराइट। नाउ वी विल मूव टू द सेक्शन 1.6, ओके, 1.6। अभी तक हमने जो कॉन्फ़िगरेशन देखा था वो टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन था, ऑलराइट। अब हम, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा चार्ज है, ओके, 2 से ज़्यादा चार्ज है, तो फिर हम फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो दिस बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। देन वी विल स्टार्ट विथ 3 चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ऑलराइट। पहले हम 3 चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करके टोटल फोर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम एक जनरलाइजेशन करेंगे कि अगर ऐसे n चार्जेस हैं, इफ़ देयर आर टोटल n चार्जेस, तो उन पे फोर्स कैलकुलेट करने का कैसा एक्सप्रेशन होगा, ऑलराइट। So consider this charge configuration. I have made this charge configuration on this side. Okay. So यहाँ पे origin है आपका, ये origin रहा आपका, और फिर उसके बाद ये चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है, ऑलराइट। चार्ज Q3 R3 पोजीशन वेक्टर पे है, चार्ज Q1 R1 पोजीशन वेक्टर पे है, और चार्ज Q2 R2 पोजीशन वेक्टर पे है, ओके। ये पोजीशन वेक्टर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दिस इज वाई आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, ओके। सो यहाँ पे Q1 पे हमारे पास, हम ये मानेंगे कि Q1 पे एक, देखो पहले तो ये समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमारे पास पहले ही मैं कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़ता हूँ। द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय कूलॉम्स लॉ, ऑलराइट। नाउ how to calculate the force on a charge where there are not one but several charges around, okay. So consider a system of n stationary charges Q1 Q2 Q3 ... up to Qn in vacuum, this is very important keyword, in vacuum। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं वो फ्री स्पेस और वैक्यूम में पढ़ रहे हैं। What is the force on Q1 due to Q2 Q3 and ... Qn? So Coulomb's law is not enough to answer this question, right? So Coulomb's law का जो एक्सप्रेशन है उससे तो हम निकाल नहीं पाएंगे। Then
Recall that forces of mechanical origin add according to parallelogram of addition. यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो मल्टीपल फोर्सेस हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं. सो इज दिस द सेम, इज इट true for forces of electrostatic origin as well? Yes, we will see how. Experimentally, it is verified that force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time. मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे ऐसे सेवरल चार्जेस दिए हुए हैं तो मैं क्या करूँगा, पहले अगर मुझे Q1 पे अगर फोर्स निकालना है, Q1 पे फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, Q1 पे बाकी चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है उनको मैं सॉल्व आउट करूंगा और फिर उसके बाद उनका वेक्टर समेशन कर दूंगा. क्या कर दूंगा, वेक्टर समेशन कर दूंगा. ऑलराइट, वेक्टर समेशन कर दूंगा. देन यू विल से कि सर अगर जब जिस टाइम पे हम Q1 को कंसिडर कर रहे हैं उसी टाइम पे जो Q1 पे फोर्स जो है Q2 से लग रहा है, Q3 से लग रहा है, लेकिन उसी टाइम पे Q2 पे Q3 की वजह से भी तो फोर्स लग रहा होगा सर. ऑलराइट सर, Q2 पे Q3 की वजह से भी तो फोर्स लग रहा होगा, तो हम क्या उस टाइम उसको कंसिडर नहीं करेंगे? सी, जब हम एक चार्ज को एट अ टाइम ले रहे हैं तो उस चार्ज पे बाकी चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है उस टाइम पे हम केवल उसी को कंसिडर करेंगे. जब Q1 को हमने कंप्लीट कर लिया, देन विल गो बैक टू Q2 एंड देन वी विल कंसिडर फोर्सेस ऑन Q2 बिकॉज ऑफ द Q1 एंड Q3. और उसी तरीके से देन वी विल गो टू Q3 एंड वी विल कैलकुलेट फोर्स ऑन Q3 बिकॉज ऑफ Q1 एंड Q2. ओके, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक टाइम पे एक ही चार्ज को कंसिडर करना है. और इसी तरीके से सारे चार्जेस के लिए वही प्रोसेस फॉलो करके व्हाट वी विल डू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. यही इस स्टेटमेंट का मतलब है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज, जो चार्ज आप कंसिडर कर रहे हो, ड्यू टू द अदर चार्जेस, बाकी चार्जेस की वजह से, टेकन वन एट अ टाइम, एक एक करके. द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस. यही मैंने बताया था कि जब आप Q1 को कंसिडर कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि Q1 के कंसिडरेशन के टाइम Q2 पे भी तो फोर्स लग रहा है, वो हम सेपरेटली करेंगे. ओके, सो ये अनअफेक्टेड रहता है उस टाइम के लिए. मतलब क्या हुआ कि Q1 पे जो चार्ज Q2 की वजह से लग रहा है, Q3 की वजह से लग रहा है, वो हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन Q1 पे चार्ज कैलकुलेट करते वक्त हमें ये ध्यान नहीं देना है कि सर Q2 पे Q3 की वजह से भी लग रहा है. तो Q2 पे Q3 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उससे ये Q1 पे फोर्स अनअफेक्टेड रहता है. ऑलराइट, यही इस स्टेटमेंट का मतलब है. ऑलराइट, आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन एंड अगेन. Now, to better understand the concept, consider a system of the three charges that I have shown here. All right, the force on one charge, say Q1, due to the other two charges Q2 and Q3, can be therefore be obtained by performing a vector addition of the forces due to each one of these charges. Thus, if the force on Q1 due to Q2 is denoted by F12 and F12 is given by equation 1.13, तो ये हो गया इक्वेशन. F12 पे ये इक्वेशन हो गया. ऑलराइट, F12 फोर्स ऑन चार्ज बाई 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 पोजीशन वेक्टर. और R12 को कैसे पढ़ेंगे, लीडिंग फ्रॉम 2 to 1. उसी तरीके से F12 है तो F13 भी होगा. F13 क्या हो जाएगा, 1 बाई ये वाला एक्सप्रेशन, F13 का ये वाला एक्सप्रेशन है. F13 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 इंटू R13 का यूनिट वेक्टर. ओके, यहाँ पे ध्यान दो कि F1 पे चार्ज Q1 पे हम कौन से फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, उस चार्ज पे बाकी चार्जेस की वजह से. ऑलराइट, सो therefore for n charges force on charge Q1, अगर तीन की जगह ऐसे टोटल n चार्जेस हैं तो उन n चार्जेस की वजह से चार्ज Q1 पे कितना फोर्स लगेगा उसको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे. और इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो F1 becomes F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस 1 NS वेक्टर. ऑलराइट, अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये एक एलिमेंट्री स्कूल में आपने इसको पढ़ा होगा, 9th 10th 7th 8th क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा कि जब ऐसे एक्सप्रेशंस रहते हैं तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन तो आप कॉपी में लिख नहीं पाओगे, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे हम ये समेशन नोटेशन यूज करते हैं यहाँ पे. अब इन सब्सक्रिप्ट्स पे आप ध्यान दो. देखो, व्हेन आई वाज इन 12th क्लास ऑल्सो ये चीज़ समझने में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी, और जब दिक्कत होती थी और जब नहीं समझ आता तो छोड़ देता था. बट यू विल नॉट डू दिस. ओके, यू विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक. इसको आपको समझना ही पड़ेगा. थोड़ा थोड़ा पोर्शन में ब्रेक करके आप जब समझोगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें. तो यहाँ पे देखो कि F1 कंसिडर कर रहे हैं,
चार्ज Q1 पे फोर्स कंसिडर कर रहे हैं तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में सेम रहेगा, तो उसको हमने कॉमन ले लिया, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान दो, इसको सॉरी इस पे फोकस करो। ओके, सो Q1 और Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन ले लिया, राइट। तो बचा क्या, Q2 डिवाइडेड बाई R12 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले मैंने समेशन का नोटेशन लगा यहाँ पे, फिर I इक्वल्स टू अप टू n, I इक्वल्स मतलब यहाँ पे हम 2 से स्टार्ट करेंगे और nth चार्ज तक जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यू आई डिवाइडेड बाई R1I स्क्वायर इंटू R1I यूनिट वेक्टर। आई एम डूइंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज ये आगे जाके आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में जब आप प्रोग्रेशन सॉल्व करोगे ना मैथमेटिक्स में, तो आपको ऐसे समेशंस को समझ में आने की जरूरत है। दैट इज वाई आई एम फोकसिंग सो मच राइट हियर, ऑलराइट। तो अगर इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान दो, तो क्यू आई की जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो क्यू आई की जगह Q2 हो जाएगा, तो ये आपका Q2 रहा, ये Q2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R1, आर आई की जगह क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो R12 स्क्वायर हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद इंटू यूनिट वेक्टर R12, तो ये हो गया। उसी तरीके से जब हम I इक्वल्स 3 रखेंगे तो I इक्वल्स 3 इक्वल टू यहाँ पे I इक्वल्स 3 आ जाएगा, और यहाँ पे Q3 बन जाएगा, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर R13 बन जाएगा। ओके, सो इसी तरीके से हम nth चार्जेस के लिए सेम करेंगे, और इसीलिए हमने कॉमन एक सिंपल एक्सप्रेशन बना दिया है जो ये शो करता है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यहाँ पे मैंने वेक्टर समेशन किया है क्योंकि आगे चल के जो आपको 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, एग्जांपल 1.5 विच एंड एग्जांपल 1.6, आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दीज 2 एग्जांपल्स बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देम, ऑलराइट। इससे आपका एक बहुत बड़ा बेसिक्स तैयार हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दिस एग्जांपल 1.6 इज वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल टू सॉल्व कूलॉम्स लॉ एंड फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस इन वेक्टर फॉर्म। जब आप इसको समझ जाओगे, इन दोनों ही एग्जांपल्स को आप अच्छे से समझ जाओगे, तो दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू। नाउ द वेक्टर सम इज ऑब्टेन्ड एज यूजुअल बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। All of electrostatics is basically a consequence of Coulomb's law and superposition principle। कह रहा है कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ोगे वो बेसिकली क्या है, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ Coulomb's law and superposition principle। यही आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, जब ढेर सारे फोर्सेस आपको दिए होते थे तो आप सारे फोर्सेस को एट अ टाइम कंसिडर करके आप पैरेललोग्राम मेथड से या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप सॉल्व करते थे, ऑलराइट। सो दिस मच इज फॉर दिस वीडियो। We will come back with another video on how to solve this example 1.5 and example 1.6। okay, so I hope आपको ये चीज़ें समझ आ गई। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, but still you watch this video again and again to understand what I have told you in this video, alright। so we will meet again in another video। until then पढ़ाई करते रहिए, stay safe, stay curious, alright।